सो आज का जो टाइटल है प्रेसिंग ऑन टुवर्ड्स द गोल। And today's our title for the message is pressing on towards the goal. ये कोई मैं प्रचार नहीं कर रहा, प्रवचन नहीं दे रहा, जस्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है और वो चीज जो मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। And this is not something which I want to share as a word or as a verse or preaching, but I want to share this thing as because this thing Lord was putting in my heart that I want this thing to be true in my life. हमारे मसीह जीवन में हमारा गोल और उद्देश्य बहुत जरूरी है। In our Christian life, our goal and our intention for why we are following this, it is most important thing. तो जब मैं प्रभु में 2010 में प्रभु को मैंने पहली बार जाना था। And in the year 2010 when I came to know the Lord for the first time, 2010 से लेके 2016 तक मुझे गोल पता नहीं था। लोगों को मैं नेट पे देखता था, यूट्यूब पे देखता था, बहुत सारे प्रचारकों को, पास्टर क्रिस, पास्टर बेनीहीन, बहुत सारे लोग, और उनकी सेवकाई को मैं देखकर मैं सोचता था मुझे ऐसा कुछ करना है। And from the year 2010 till the year 2016, I was not knowing what's my where I'm going, what's my goal in my Christian life, because I used to look at so many preachers and pastors on YouTube channel, on the internet, like Benny Hinn and all, and I used to think that I want such a ministry like they have. और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे भी ऐसा सामर्थ्य दे, अभिषेक जैसा उनके पास है, और मैं भी वही करूं जो वो कर रहे हैं। And I used to pray that Lord give me such an anointing, such a gift and such a power that a ministry that these people are doing, I want to do the same. बट जैसे जैसे दिन चलता गया, ये सब करके मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा एक कोई कस्टम्स में घुस गया या कोई एक रिलीजन फॉलो कर रहा हूँ, वैसा फील होने लगा था। And as the days progressed and I went forward and I started to look that I started to feel that where I'm going, what's happening, it's like I'm following some sort of custom or religion kind of thing. और मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है आगे। लोगों को देखता था और उनको कॉपी करने की कोशिश करता था। I was not knowing what I supposed to do, and I used to look at some people and I used to copy their things. लेकिन 2016 में पहली बार जब ब्रदर जैक से मैंने सुना हमारे जीवन का उद्देश्य, प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया है, किस लिए हम क्या कॉलिंग रखा है, तब सचमुच मेरा जीवन में मुझे उद्देश्य मिल गया। But in the year 2016, when I first time heard Brother Zach about this thing that we have a goal in a Christian life, what is that goal? I started to press on towards that. उसने रोमन अध्याय 8 के 29 वचन से कहा कि हमारा गोल है कि यीशु जैसा दिन प्रतिदिन बनना, और यही प्रभु ने हमारे लिए पहले से ही सोचा था। And Brother Zach quoted one verse from Romans chapter 8 and verse 29 that our goal is to become like Jesus Christ more and more. हाँ, तो उस दिन से मुझे पता चला कि मेरे जीवन का असल उद्देश्य क्या है, प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया था। And that day I came to know about my Christian life's goal, that what is the purpose behind God to bring me in Christianity. और मैं जैसे जैसे प्रभु के साथ चलने लगा, कई बार मैंने ठोकर खाया, कई बार फॉल हुआ, गिर गया, और कई बार ऐसा सोचने लगा कि सचमुच ये क्या पॉसिबल है यीशु जैसा बनना। But as the days progressed and I started to grow in the Lord, I fell down so many times and I stumbled in my walk with the Lord, and I used to think that is it really possible that we can be like Jesus. लेकिन जैसे मैंने भाइयों से सुना, भाई मैथ्यू, ब्रदर जॉर्ज और बहुत सारे सैम ब्रदर और भाई लोग जैसे अपने अपने बांटते गवाही, तब मैंने सोचा कि कैसे प्रभु ने इनके लाइफ में काम किया, जरूर प्रभु कार्य करेगा। And but when I came to know and I talked with Brother Matthew, Brother George, and so many brothers in our midst, and I heard their testimonies, then I felt like it's possible for me and I can be like Jesus. और तब मैंने पौलुस का ये वचन भी पढ़ा था, लिखा हुआ, उसने कहा कि इब्रानियों 11:6 में कि ऐसा नहीं कि मैं कर चुका हूं या पा चुका हूं, लेकिन मैं मूविंग फॉरवर्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं।
And I came to know about one verse which Paul quoted, and in Hebrew chapter 11 verse 6 we read that it's not something that I have already obtained or I have got it, but I'm pressing on towards it to get it. हाँ, तो यहाँ पर लिखा है कि ऐसा नहीं कि मैं सिद्ध बन चुका हूँ, बट मैं आगे बढ़ रहा हूँ. And here a verse says it is not that I have already become perfected, but I am pressing on towards it. हाँ, तो ये सुनकर बहुत मोटिवेशन मिला कि हाँ, कि मतलब पौलुस खुद कहता है कि ऐसा नहीं कि वो सिद्ध हो गया, बट इस ट्राइंग, वो आगे बढ़ रहा है प्रभु की सहायता से हर दिन प्रतिदिन, और वही हम सबको करना है. And here the apostle Paul is saying that I am not become yet perfect, but I am pressing on towards it. I am pressing on, and Lord, I am asking the Lord to help me, and I will obtain it. तो वहां पर इब्रानी 11:6 में ऐसा लिखा है कि जो कुछ सिद्धांत है, जैसा बेसिक एलिमेंट्री टीचिंग जिसको कहते हैं, वो सब छोड़ के हमें आगे की ओर बढ़ना है. And in Hebrew chapter 11 verse 6, apostle says that elementary teaching we should leave behind and we should move forward towards perfection. ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं है, वो तो हमारे क्रिश्चियन लाइफ का एक बेस ही है. It is not that elementary teachings are not important. These are elementary teachings are base of our Christian life. उसके बिगर हम क्रिश्चियन लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. And without these elementary teaching, we cannot move forward in our Christian life. जैसे कि मन फिरावा, Just like for example, repentance, विश्वास करना, keeping a faith in the Lord, बपतिस्मा लेना, and taking a baptism, और प्रभु की सेवा करना, and serving the Lord. और हमारे बाहरी तौर पर हम जैसे प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, वो एक लाइफ. And from outwardly, we want to walk with the Lord. दूसरे को क्षमा करना, ये सब एक एलिमेंट्री टीचिंग है जो हमने शुरुआत में सुनी थी जब मसीहा में आए थे. And forgiving others, and these are all the part of elementary teachings which we heard when we came in the Lord for the first time. तो ये तो बहुत जरूरी है कि मसीह जीवन का नींव है. ये अगर हमारे लाइफ में नहीं है तो हम आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे. And these are all teachings are basis and are pillar of our Christian life. Without these teachings, we cannot grow in the Lord. अगर ये हमारे जीवन में आया ही नहीं है तो हम आगे की ओर बढ़ ही नहीं पाएंगे. And if these things are not become yet true in our life, we cannot grow more further. जैसे बच्चे को ABCD नहीं पढ़ा, डायरेक्ट हम 10th स्टैंडर्ड में डालेंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो पढ़ पाएंगे ऐसा. It's like a child who never learned ABC, and we put that child directly into the 10th standard. That child can never be past that standard. लेकिन जब बच्चा ABCD पढ़ता है तो आगे वो वर्ड्स को जब बनता है तो वो उसको क्रिएट कर सकता है. But as a child learns what is A, B, C, D, and that's how he learns to put it into a word and then make a sentence, and then that child grows. तो वैसा ही पौलुस कहता है ये सब एलिमेंट्री टीचिंग जो है उसको छोड़कर हमें आगे की ओर, मतलब परफेक्शन की ओर बढ़ना है. Similarly, Apostle Paul says that these are all elementary teachings, and we should leave behind this teaching, and we should pressing on towards perfection. तो अभी मेरे लिए मेरा गोल वही है कि मैं हर दिन प्रभु के जैसा बनने के लिए प्रभु से प्रार्थना करूं, प्रभु के साथ चलने के लिए वो चीज मैं पाना चाहता हूं. And now I want this thing to be true in my life, that I want to walk with the Lord all the days from now onwards, and I want the Lord to help me to walk with him, and this is my goal now. और मत्ती 5:48 में यीशु खुद कहता है कि पिता की यही इच्छा है कि हम सिद्ध बने जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है. And in Matthew chapter 5 verse 48, Jesus said that you should be become perfect. Just you have to be perfect just as your heavenly Father is like. देखो वहां पर यीशु ऐसा नहीं कहता कि तुम अच्छे बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छा है. नहीं, अच्छा नहीं, अच्छे तो बहुत सारे लोग दुनिया में है. Here we see in that verse that Jesus is not saying that you should be good as your heavenly Father is good, because there are so many people who are good in this world. जो बहुत लोग अच्छे काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं दुनिया में, बट ये वहां पर यीशु कहता है यू हैव टू बी परफेक्ट. And we see around so many people who are good and doing good things, but Jesus is saying in this verse that we should be perfect as our Father is perfect. और परफेक्ट हम कैसे होंगे? And how we can become perfect?
ये परमेश्वर का काम हमारे अंदर होता है। The work of the Lord takes place in our life. प्रभु का जो कार्य हमारे भीतर होने चालू होता है, तब हमारा लाइफ परफेक्शन की ओर बढ़ता है। When the Lord starts working in our life from within, then we start becoming perfect. उसका मतलब हमारा भीतरी जीवन धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ता है। It means like our inner life start transforming and it becomes perfect. देखो, भारी तौर पर हम किसी को भी दिखा सकते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत हम्बल है। इसीलिए प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि हम्बल योरसेल्फ इन द साइट ऑफ लॉर्ड, नॉट इन द साइट ऑफ मेन। मनुष्य के सामने हम्बल बन के हमको कोई मतलब नहीं है, ना स्पिरिचुअल दिखा के कोई फायदा नहीं है। हमें प्रभु के सामने हम्बल बनना है और प्रभु के सामने हमें नम्र बनकर जाना है। वो क्योंकि हमें मनों को जांचता है और वो ऐसा 1 या 2 घंटा हमको नहीं देखता, वो हमेशा हमको देखता है। And see, it's easy for us to show outwardly how much we are spiritual and how much we are humble, and we can do these things outwardly before the men. But the word of the Lord says that Lord looks at our inner life, inner heart, and Lord is not. It's not like Lord is watching for 1 hour or 2 hour, like outside people watching us. But Lord is watching us all the time, and we should be not. We should humble ourselves not in the sight of the men but in the sight of the Lord, and he will exalt us. तो हमें ये बात का बहुत ध्यान रखना कि प्रभु हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। So we should remember these things in our life, that Lord is the searcher of our heart. He searches us and he sees us what we do, और वहीं से हमारा परफेक्शन शुरू होता है। and from that point onwards, that level onwards, our perfection starts. और वहां पर ऐसा लिखा है, जैसा यीशु मसीह का मन है, जिसका एटीट्यूड है, वैसा तुम्हारा हो। फिलिपियर 2:5। And we read in Philippians chapter 2 verse 5 that we should have a mind just as mind of Christ, just as Christ had. तो जैसा यीशु मसीह का मन था, वो मन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। Attitude which Jesus had, we should have the same attitude. और ये एटीट्यूड हम पैदा नहीं कर सकते, ये परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर से आता है। And we cannot produce such an attitude from within ourselves by our own effort, but God gives us such an attitude. हमारे जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि दिन प्रतिदिन हम प्रभु जैसा बने और दिन प्रतिदिन प्रभु हमारे अंदर कार्य करे। We should desire and long for that Lord should work each and every day of my life, and I Lord work in a such a way that I want to become more and more like Christ. कोलोसी अध्याय 2 का 6 और 7 में ऐसा लिखा है। Colossians chapter 2 verse 6 and 7 says, जैसा हमने यीशु मसीह को रिसीव किया हमारे प्रभु जानकर, therefore as you have received Christ Jesus the Lord, और उसमें हम जीवन आगे को बिताए, so walk in him, और उसमें जड़ पकड़कर मजबूती पाए, and having been firmly rooted, now being built up. या यही हमारी लाइफ का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हर दिन जैसा हमने प्रभु को रिसीव किया विश्वास के साथ, जैसे जॉन चैप्टर 1 इट सेज, जॉन 1:12 आई थिंक, कि as many as received him in faith. And we should make these words as a goal of our Christian life, that the word says that as many as received Jesus by faith. No, not that verse, brother. Colossians 2:6-7 हमारे लाइफ का गोल होना चाहिए कि दिन प्रतिदिन हम प्रभु जैसा बने और उसमें अप्रूट हो जाए और उसमें जड़ पकड़कर हम बढ़े। And the verse which we read in Colossians chapter 2 verse 6 and 7, these words should be goal of our Christian life, that I want to be with the Lord and I want to walk in him, I want to be firmly rooted in him and I want to grow in him. Rooted in him मतलब उसमें जड़ पकड़कर उसमें बढ़ना। And rooted in and we should be rooted firmly in the Lord. हाँ, तो जैसे मैंने कहा, हमने प्रभु को रिसीव किया विश्वास के द्वारा, जॉन 1:12। And as John chapter 1 verse 12 says, I have received the Lord by faith. तो वो आगे कहता है, प्रभु को अपना परमेश्वर जानने के बाद अभी हमको उसमें आगे की और ऐसा ही जीना है उसके साथ। And
other verses says after that after receiving the Lord, we should make him Lord of our life and we should walk with him. और उसके साथ उसमें जड़ पकड़कर उसमें मजबूती पाना बहुत जरूरी है. And by the help and strength of the Lord, we should be rooted firmly in the Lord. It is very important for us. ब्रदर्स एंड सिस्टर, अद्भुत बात यह है कि उसमें जड़ पकड़ के रहने के लिए हमें अपनी कोशिश की करने की कोई जरूरत नहीं है. जैसे यूहन्ना अध्याय 15 में लिखा है कि एक झाड़ होता है और ब्रांच उसमें जुड़ा हुआ रहता है, वो अपने आप बढ़ता है. And brothers and sisters, amazing thing in this thing is that to be rooted firmly in the Lord, it is not that we should put our effort, but it is the Lord who helps us to be with it. Like John chapter 15, it says that a branch is connected with the tree. हाँ, हमारे कोई अच्छा काम करे या हम कुछ करे, प्रचार करे, गीत गाए या कुछ भी करे, वो हमको मजबूती नहीं देगा. हमको मजबूती कैसे मिलता है? When we are connected, when अगर एक ट्री उसके ब्रांच उससे कनेक्टेड है, that is the time he gets strength, और वो बढ़ते जाता है. And it is not like how much we are praying and how much we are serving the Lord, singing for the Lord, doing for the Lord, that helps us to be in the Lord. No, it is just a only simple thing. A branch is connected to the tree. That's how that branch is growing. और तब वो uproot होता है और उसमें जड़ पकड़कर वो मजबूती पाता है. And that's how that branch is getting up firmly rooted with that tree, and then it bears fruits. और ये ब्रांच को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो सिर्फ उसके साथ जुड़ा रहता है और वो उसके जुड़ने के कारण वो इतना फलवंत होता है कि उसके ऊपर पत्ते आते हैं, फिर फूल आते हैं और उसके बाद में फल आते हैं. And that branch has to take no effort to bear fruits and leaves and all. That branch just has to be connected continuously with that tree, and rest that branch automatically will bear some leaves and fruits automatically. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमें भी ऐसे ही प्रभु के साथ जुड़े रहना है हर दिन, हर समय, ताकि हमारा जीवन ऐसा फलदायक हो और हमारे अंदर पत्ते आए और परमेश्वर के फूल आए और उसके बाद में हमारे अंदर फल लगने लगे. And brothers and sisters, our life also should be like that. Branch is connected with the tree. Our life should be connected with the Lord all the time, all the days, so that we can also bear fruits for the Lord. जीसस वहां पर खुला खुला कहता है, मुझसे अलग है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. खुला स्टेटमेंट. And Jesus gives an open statement clearly that beside me you can do nothing. तो यहाँ पर यीशु मसीह खुलेआम कहता है कि मुझसे अलग है कि तुम कुछ भी करो, that will not work. तुम्हारे लाइफ में कुछ पॉसिबल ही नहीं तुम कुछ करना. जब तक तुम मुझसे जुड़े नहीं हो, you can do nothing without me. And Jesus says clearly, openly there that if you want to do something beside me and without getting connected with me, you can try it, but it's not going to work. It's not going to change. इसीलिए वो वचन ऐसा कहता है फिलिपियों में कि मैं मसीह में जो मुझे सामर्थ्य देता है हर चीज कर सकता हूँ. जब मसीह में मुझे सामर्थ्य मिलता है तब मैं सब कर सकता हूँ. Without Christ I can do nothing. That's why in Philippians we read one verse that that verse says that with Christ and with the help of the Christ I can do everything. So brothers and sisters, ये बात खुला हमें बताता है कि यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा क्रिश्चियन लाइफ एक बोरिंग लाइफ है. हम एक कोई रिलीजन फॉलो कर रहे हैं या कोई कस्टम कर रहे हैं. अगर लेकिन हम यीशु के साथ जुड़े हैं तो हमारा लाइफ दिन ब दिन प्रतिदिन, जैसे हमने सुना कि वो जड़ पकड़ेगा और बदलेगा. ऐसा नहीं कि हम गलती नहीं करेंगे, हमसे गलती नहीं होगी, वो होगी, जरूर होगी, क्योंकि हम एक शारीरिक रूप में जी रहे हैं. कई बार हम ठोकर खाएंगे और उससे हम सीखेंगे, बट मेन थिंग है कि हम प्रभु के साथ जड़ पकड़कर खड़े हैं. And brothers and sisters, if we are not connected with the Christ and He is not working in our life, then in our Christian life, whatever we are doing, whatever we are living, it's not going to help it. And our Christian life, after some time, we will get bored with our life, and it's not going to get changed. But we should be get connected with the Lord all the time, and Lord will work for us. जैसे पौलुस अपनी गवाही देता है 2 कुरिन्थियन अध्याय 4:16 में कि मेरा भारी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन घटता है, लेकिन भीतरी मनुष्य, द इनर मैन, दिन प्रतिदिन नया बनते जाता है. दिस शुड बी आवर टेस्टिमनी. और ये मैं बहुत लॉन्गिंग करता हूँ कि मेरे लाइफ का भी ऐसा ही गवाही हो
And as we read in Second Corinthians chapter 4 and verse 16, therefore we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. And brothers and sisters, this should be testimony of our Christian life, that my inner man is day by day renewing. हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो हमने कहा कि वो दिन प्रतिदिन नया होता है, प्रभु से रेवलेशन मिलता है, हाँ प्रभु मैं यहाँ पे गलत हूँ, एंड ही वांट्स टू चेंज, और उसको बदलना है। दिन प्रतिदिन प्रभु से लाइट मिलता है, दिन प्रतिदिन हम बदलते हैं। दैट इज व्हाट पॉल सेज कि वो एलिमेंट्री टीचिंग छोड़कर हमें आगे की ओर बढ़ना है, प्रभु जैसा दिन प्रतिदिन बनना है। And here in this word we read that yet our inner man is being renewed day by day, and in our inward being only Lord working for us, and Lord gives us some revelation on our Christian life in inward life, and where we are wrong or we are doing something wrong, and where we are fallen down, and Lord helps us to get that thing right and set that thing right, and then we grow in the Christian life. As Paul says, we should leave behind elementary teachings and we should become renewed day by day in our inward man. हाँ, और ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई प्रेज गॉड कि जब 2010 से मैं प्रभु को जाना और अभी तक का जो मेरा क्रिश्चियन लाइफ में प्रभु के साथ, मैंने कई बार उतार चढ़ा हुआ, कई बार गिरा, कई बार खड़ा हुआ, कई बार डिस्करेज हुआ, कई बार ऐसा सोचा क्या कर रहा हूँ, बट एट द एंड प्रभु ने जहां अभी मुझे लाया है, आई कैन कन्फेस, मैं बोल सकता हूँ कि प्रभु ने मेरे अंदर बहुत बदलाव किया है, मेरे लाइफ चेंज किया है। ऐसा नहीं कि मैं गलती नहीं करता हूँ, नहीं होता है मुझसे गलती, बट स्टिल मेरा कॉन्शियस प्रभु ने क्लियर किया है। जब भी गलती होती है तुरंत खड़ा होने के लिए प्रभु मुझे सहायता करता है, एंड आई एम हैविंग अ गुड कॉन्शियस बिफोर गॉड। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतने सालों में प्रभु ने कितना बदलाव मेरे बोलचाल, स्वभाव में, व्यवहार में किया है, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये तो शुरुआत है। आने वाले दिन एवरी डे गॉड विल वर्क ऑन मी एंड चेंज मी। And brothers and sisters, from the year 2010 till today till today, the Lord has worked in my life so amazingly that so many ups and downs and hurdles came, and I fall down so many times. But the Lord helped me to get up and set the things right, and I cried out to the Lord, and Lord really changed my life, transformed me in my behavior, in my nature, the way to speak, and how to behave and do some things. And I trust that this is just the beginning of the Lord, that the work he has started in my life, and many more amazing things Lord will do in my life coming. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं भारी तौर पर बात कर नहीं बता रहा हूँ, मैं भारी तौर का जीवन नहीं बता रहा हूँ, मैं भीतरी जीवन के विषय में कह रहा हूँ, जो अंदर प्रभु चेंज करता है, अंदर हमारे अंदर क्या क्या चलता है, वो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि प्रभु अंदर बहुत काम किया है। भारी तौर पर हम दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर जो है वो प्रभु देखता है। यहाँ पर प्रभु ने काम किया है, और आई बिलीव कि हम में से बहुत सारे ब्रदर्स और सिस्टर की यही टेस्टिमनी रहेगी, जब से उन्होंने प्रभु को जाना अब तक हम जब देखते हैं अपना लाइफ, बहुत कुछ प्रभु ने चेंज किया। जैसे कल भाई विजय ने भी कहा कि प्रभु ने मेरे अंदर बदलाव किया। अगर प्रभु नहीं करता तो मैं शायद उस व्यक्ति को मारता था या कुछ बोलता था, लेकिन मेरे अंदर प्रभु ने काम किया, तो मैंने वही देखा कि प्रभु ने कैसे लोगों के हृदय में परिवर्तन किया है, चेंजेस किया है और बदलाव किया है। And I want to say, brothers and sisters, that I am not talking about our outward life, because in outward life we can behave well and good, but I am talking about our inner life, which is more important. That from within, from our inner life, from heart, we should get transformed, and our Christian life should get transformed. And Lord, I want to say that Lord has really worked in my life, that my inner life got changed, and there, we all, brothers and sisters, having different testimonies how the Lord is working in their life. And yesterday also we heard from brother Vijay also that the brother was saying that if the Lord did not change my heart from within, I may have lifted my hand upon that person, that brother who is opposite to him. So brothers and sisters, जो भीतरी बदलाव करता है वो कोई मनुष्य नहीं करता, ना कोई किसी का प्रचार करता है, ये प्रभु है जो हमारे भीतर को बदलता है और हमें दिन प्रतिदिन नया बनाता है। And brothers and sisters, from within our inward life, nobody can change, no human being can change, nor the preaching of the man, but only the Lord can do that. और जैसे पौलुस कहता है कि दिन प्रतिदिन में नया होता है, दैट इज वेरी मच एनकरेजिंग फॉर अस कि दिन प्रतिदिन प्रभु हमारे अंदर काम करता है। And as Apostle Paul says that day by day our inner man is renewed, and it is amazing to know that Lord is working day by day in our life.
ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो ऐसा नहीं कहता कि दिन प्रतिदिन प्रभु मुझे बदल रहा है, वहां पर ऐसा लिखा है कि दिन प्रतिदिन प्रभु हमें बदलता है। And there we read in that verse that it is not the word is not saying that Lord is day by day changing me, but it is saying that day by day Lord is changing us. वो वचन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा वो ऐसा नहीं कहता मेरा, वो कहता हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता है। एंड दैट इज एन अमेजिंग टेस्टिमनी। यही हमारे लाइफ का गवाही होना चाहिए, और यही मैं भी बहुत लॉन्गिंग करता हूँ कि दिन प्रतिदिन हमें अंदर से नया बनते जाना है। प्रभु हमारे लाइफ को अपने जैसा दिन प्रतिदिन हमें बनाना है। And I want to read that word, 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Therefore we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man, it is here Apostle Paul using word not me, but it is Apostle Paul using word our inner man is being renewed day by day. And brothers and sisters, this is a testimony, and I'm longing for it for my life, that my life should be renewed day by day from within. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम भारी तौर पर शायद हम अच्छा दिखा भी सकते हैं, बट यू नो व्हाट, हमारा कॉन्शियस कभी क्लियर नहीं रहेगा। हमारा कॉन्शियस हमेशा हमको कहेगा, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मैंने पहले जैसे मैं यीशु में आया था, भारी तौर पर अच्छा था, लेकिन भीतरी तौर मेरा अच्छा नहीं था ब्रदर्स एंड सिस्टर, और मेरा कॉन्शियस कभी भी क्लियर नहीं था। मैंने इसका बहुत बार कहा भी है, लेकिन भीतरी तौर पर कॉन्शियस क्लियर होना, दैट इज द बिग टेस्टिमनी ऑफ अ लाइफ। अगर हमारा भीतरी तौर पर अच्छा नहीं है कॉन्शियस, प्रभु ने हमारे अंदर साफ नहीं किया, बदलाव नहीं किया है हमारा भीतरी अंदर, तो भारी तौर पर एक फरीसी जीवन हम जी रहे हैं ब्रदर, एंड दैट इज मोर डेंजर लाइफ, अगर हम ऐसा लाइफ जी रहे हैं तो। And I want to tell you, brothers and sisters, if our life is not changing from within, and we are living outwardly upright before man, then that life is so dangerous that Lord should change from within our heart. Our inward life should get changed. And if we are not doing that, if that changes is not taking place in our life, then we are like a Pharisee, and living a life of a Pharisee is a much more dangerous than this. हाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर, इसीलिए पौलुस कहता है ऐसा नहीं कि मैं सिद्ध बन चुका हूँ या पा चुका हूँ, लेकिन मैं उस निशाने की ओर दौड़ रहा हूँ ताकि मैं परफेक्ट बन जाऊं। तो हमारा लाइफ में भी ऐसे ब्रदर्स एंड सिस्टर, कई बार डिस्करेजमेंट आएंगे, कई बार हम फेल हो सकते हैं, कई बार हम ठोकर खा सकते हैं, बट हमें अपना होप छोड़ना नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर। हमें खड़े होना है मजबूती से, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है। बाइबल कहता है हम कई बार अविश्वास योग्य रहते हैं, लेकिन प्रभु विश्वास योग्य है, हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। वो हमारा हाथ ऐसे नहीं छोड़ेगा, ऐसे लाकर हमको कहीं फेंक नहीं देगा, वो विश्वास योग्य है। अगर हमारे अंदर डिजायर है प्रभु के साथ चलना, वो जरूर हमको खड़ा करेगा और उसके साथ चलने के लिए सामर्थ्य भी देगा। And brothers and sisters, that word says that Apostle Paul said, not that I have already obtained it, but I have already become perfect, but I press on so that I can hold of this, that for which Christ called me. And brothers and sisters, we should ask the help of the Lord. We cannot do this by our own, and it is not that Lord is going. The word says that we may become unfaithful, but Lord cannot deny that, and Lord is faithful for us, and He will do that work for which He has called us. And He is not like that bringing us half the way, and He is going to leave us in the midst of that journey. No, He is going to help us throughout it. देखो, पौलुस खुद कहता है कि मैं सिद्ध नहीं हूं, तो हम कौन है? पौलुस से बढ़ के तो हैं हम नहीं है, हमसे भी कई बार मिस्टेक हो सकता है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि हमें आगे की ओर बढ़ना है। जो छूट गया वो पीछे छोड़ के हमें आगे की ओर प्रभु के साथ एक फेलोशिप में रहना बहुत जरूरी है। And brothers and sisters, Apostle Paul himself is saying that he is not yet become perfect. So who we are, think of ourselves. We should be should having the same goal that I want to become perfect, and I want to obtain it. It's not mattering that how many times I am falling, but it's like how many times I am getting up. तो पहला यूहन्ना अध्याय 3:2 में लिखा, वी ऑल आर चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। बहुत ही आनंदमय जो वचन है कि हम सब प्रभु के बच्चे हैं। 1 John 3:2, and we read in 1 John 3:2, it says that, beloved, now we are children of God, and it is not appeared as what we will be. And we all are children of God, brothers and sisters. By faith
by faith we are children of God. ऐसा नहीं feelings के ऊपर, but by faith we all are children of God. अगर जितना बड़ा हम विश्वास दिखाएंगे प्रभु के प्यार के ऊपर, उतना हमारे अंदर का कॉन्शियस क्लियर होगा और हमको पूरा विश्वास होगा. बाइबल कहता है आत्मा हमारे अंदर गवाही देती है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं. And it is not that by our feelings we are confessing that we are God's beloved children, but it is by our faith and we are showing our faith to the Lord, the love which Lord has shown us. For that love we are keeping a faith, and the bigger our faith will be, our confession and our conscience will be clear. And it says that our Holy Spirit witness from within that we are God's children. हाँ, और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उसके आगे लिखा है जब when he appears, वो जब आएगा तो तब हम सिद्ध बन जाएंगे क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है. And which was verse 2 only, brother? वही वचन है. हाँ. And we read in further in that same verse that it has not appeared as yet what we will be. We know that when he appears, we will be like him. हाँ, जब वो आएगा तब हम उसके जैसा सिद्ध बनेंगे. उससे पहले क्या? And the verse says that when he will appears, we will be like him. But what before he appears? उसके पहले ऐसा लिखा है जो उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही प्यूरिफाई करता है जैसा कि उसका परमेश्वर पवित्र है. But in further verse we read that in verse 3 that everyone who has this hope fixed on him purify himself just as he is pure. कैसे प्यूरिफाई करेगा? प्रभु हमें प्यूरिफाई करेगा दिन प्रतिदिन. अगर हमारे अंदर चाहत है बदलने की, जरूर प्रभु हमारे अंदर कार्य करेगा. दिन प्रतिदिन प्रभु हमारे अंदर वो प्योरिटी लाएगा. जैसे सोना आग में डालकर प्योर करता है, वैसा ही प्रभु हमको प्योर दिन प्रतिदिन करते जाएगा. हमारा बोलचाल, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार दिन प्रतिदिन प्रभु हमें रेवलेशन देगा वो चीज के ऊपर और हम बदलते जाएंगे. एंड दैट इज अ अमेजिंग मिरेकल जो हम देख सकते हैं हमारे जीवन में, और वही हमारी लाइफ का गवाही है. And how our life will get purer and purer. It is the Lord who will purify us, just as we see the gold is putting in the furnace of fire to make that gold purer and purer. That's how the Lord will bring us into situations to make us pure and purify us. And it is Lord's effort by which He will do it. Amen. और ब्रदर एंड सिस्टर्स, एक चीज हमें ध्यान रखना है, अगर हमें प्रभु जैसा बनना है, अगर हमारे लाइफ में बदलाव होना है, तो बाइबल में एक वचन लिखा है, डोंट रिमेम्बर वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, बट वो ऐसा कहता है कि हम जिसके साथ, अगर हम प्रभु के साथ संगति करते हैं तो हम उसके साथ एक मन हो जाते हैं, हम उसके साथ हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं. जब हम प्रभु के साथ फेलोशिप करते हैं, दैट टाइम वी गेट कनेक्टेड टू इट. तो बहुत जरूरी है कि हमारा फेलोशिप एवरीडे किसके साथ रहता है? संसार के साथ रहता है या प्रभु के साथ रहता है या अपने फ्लैश के साथ होता है? तो बहुत जरूरी है कि हमारा फेलोशिप हर दिन हम किसके साथ रखते हैं. And brothers and sisters, to grow in the Lord and to become like Him more and more day by day. For this, I don't know exactly that verse and that reference in the Bible, but that word says that with whomsoever we are keeping a fellowship, we will be like Him, or we will become like that person. And if we are keeping our fellowship continually before the Lord, then we will become like our Lord. And we should look at our life that day by day, with whom, with Lord or with the world and things of the world, I'm keeping a fellowship with whom, and we will become like that person. हाँ, अगर हम प्रभु के साथ हर दिन फेलोशिप रखेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, सच में ब्रदर हम खुद अमेज हो जाएंगे कि हमारा स्वभाव प्रभु जैसा हो जाएगा. And if we will keep day by day our fellowship with the Lord continuously, then we will be amazed at our own life that how Lord is working for us. लेकिन अगर हम प्रभु के साथ फेलोशिप नहीं रहेंगे, संसार में घुल मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा स्वभाव संसारिक, हमारा बातचीत, हमारा बोलचाल सेम संसार के लोगों के जैसा होगा. तो बहुत जरूरी है एवरीडे हमारा फेलोशिप किसके साथ है? प्रभु के साथ, संसार के साथ या अपने खुद के फ्लैश के साथ. And if we are keeping a fellowship day by day with the world and things of the world, then we will become like people of the world. Like our thinking and our behavior, our talking and everything will become like that. But if we are keeping a fellowship with the Lord, then we will become like the Lord. 1 Corinthians chapter 6 verse 17. 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Thank you, brother. Thanks a lot, brother. हाँ, brother. Can I read it? Yeah, brother.
But the one who joins himself to the Lord is one spirit with him. वही है. या ब्रदर, वही. थैंक यू ब्रदर. हाँ, तो वो यही वचन में कह रहा था कि अगर प्रभु के साथ हम एक संगति होंगे, हमारा स्वभाव उसके जैसा बन जाएगा, और जैसा हमने कहा वो पेड़ में जैसा ब्रांच जुड़ा रहता है वैसा हमारा लाइफ होगा, और अमेजिंग टेस्टिमनी हमारे लाइफ का होगा. और ये चीज मैं अपने लाइफ में और चाहता हूँ. मैं कन्फेस करता हूँ कि लॉर्ड ने मेरे अंदर काम किया है और बदलाव किया है, बदला है पूरी रीति से मेरे अंदर. और मैं ये भी विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में और अद्भुत रीति से प्रभु मेरे अंदर ही नहीं, हम सबके अंदर ये बदलाव करेगा और हमारे लाइफ को बदलेगा. और यही हमारे लाइफ में सबसे बड़ा उद्देश्य और गोल है ब्रदर्स एंड सिस्टर. और प्रभु हम सबको इसके लिए बहुत सहायता करेगा. और मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में हम सबका पौलुस के जैसा गवाह होगा. दिन प्रतिदिन मेरा बाहरी मनुष्यत्व घटता है, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया बनता है. आमीन. And I want to say this word, brother and sister, that 1 Corinthians chapter 6 verse 17, that but the one who joins himself to the Lord is one spirit with him. And this is, brother and sister, that if we are keeping a day by day our fellowship continually before the Lord, then Lord will work in our life amazingly, that from within, as Apostle Paul was saying in that verse, that from within Lord will change our inward man, inward life. And like that branch is connected to the tree and bearing fruit, our life will become more and more fruitful to the Lord. And it's not outwardly how we are living, but inwardly we will bear fruit, brother and sister. And I want to confess it, that Lord has worked in my inward man, in my inward being. And I want to testify that Lord has worked in my life, and I have a longing for it to become like Christ more and more, and I want to get it more and more. Thank you. Amazing translation, Vipul. Thank you. Thank you, brother. Glory to God. भाई किरण के द्वारा एक प्रभु ने हम सभी से बात किया एक अद्भुत रीति से. God spoke in an amazing manner through brother Kiran. और वो स्टार्टिंग में इस तरह से किरण ने कहा कि ये मेरा प्रचार नहीं है, लेकिन ये मेरा अंदर की जीवन है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ. And just as Kiran said that this is not his preaching but his experience which he is bringing forward today. एक मसीह के पीछे चलने वाले चेले की, हर एक चेले की यही गवाही होना चाहिए कि ये मेरे प्रचार, मेरा बोली या मेरा हाथों से अद्भुत कार्य नहीं है, लेकिन मेरे जीवन के अंदर से वो बांटना चाहता है. ये गवाह होना चाहिए हम सबका. Every follower of Jesus, every disciple of Jesus should have this attitude that it is not his preaching but his inner life through which he speaks. जैसे भाई उसका अंदर के जीवन के बारे में वो हमें बाहर दिखाया कि मैं इस तरह, प्रभु ने मेरे जीवन में इस तरह काम कर रहे हैं, प्रभु ने मेरे अंदर काम कर रहे हैं. तो हर एक चीज प्रभु जो कर रहे हैं वो हमें बाहर हम सबके सामने रखा है उसने. As he spoke about his inner life, how God is working in his life. So this is what should happen in our lives also. ये जो शीर्षक है लक्ष्य की ओर दौड़ा चलना, बहुत अद्भुत शीर्षक है ये. And this title itself is very amazing, that running towards the goal. हर एक मसीह को हर दिन इस मंजिल रखना है कि मुझे यीशु की ओर देखते हुए चलना है, मुझे दौड़ना है. And every day a disciple has to keep this in mind, that he has to look at the goal and keep running. फिलिपियंस 3:12 जैसा भाई किरण ने शेयर किया कि अभी तक मैं सिद्ध नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरे सामने एक लक्ष्य है. मतलब वो हासिल नहीं किया वो सिद्धता, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे सामने एक लक्ष्य है, उसको पकड़ने के लिए मेरा दौड़ चालू है. So as brother had also shared from Philippians 3 verse 12, that I have not already obtained the goal, but this is my goal, that I have to keep on going, pressing on. जब तक यीशु वापस नहीं आएगा तब तक मेरा यही लक्ष्य होना है, मुझे उसकी ओर दौड़ना है, और एक दिन प्रभु मुझे मदद करेगा वो हासिल करने के लिए. Until the Lord returns, I have to keep running towards that goal, and God will help me to reach that goal. जो कुछ भी पिछले हो गया, जिन्होंने आपको टुकड़ाया, जिन्होंने आपको नकारा या जिन्होंने आपको दुख दिया, वो सब आगे वचन में कहता है कि मैं पिछला जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाता हूँ, लेकिन आगे की ओर मैं
देखना चाहता हूँ। And in the past, whatever rejections and you have faced, and whoever has upset you, leaving all of those things behind, as it says in the verse, that leaving all of these things behind, we look forward. समझो कि कल्पना करो कि अगर आप एक एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप ये कोर्स नहीं चुनेगा कि इंजीनियर का कोर्स नहीं चुनेगा। So suppose imagine that you want to become a doctor, so you will not enroll yourself in the engineering course. अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं आप ये कोर्स नहीं चुनेगा कि डॉक्टर का कोर्स में पढ़ूं। And if you want to become an engineer, you will not enroll yourself for the medical course. तो उसी तरह अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है तो वो चीज आप वापस सामने लाएगा जो बीत गया है। And so similarly, if you want to walk with Jesus, you have to, sorry brother, क्या बोला आपने? अगर आप यीशु मसीह को पाना चाहता है तो पिछले जो कुछ भी बीत गया है उसको आपको सामने लाना नहीं है। And so if you want to follow Jesus, whatever has happened in the past, you should not carry it forward today. इसलिए पौलुस कहता है कि पिछला जो कुछ भी हो गया वो सब कुछ भूल जाता हूँ लेकिन आगे की ओर मैं दौड़ना चाहता हूँ। And that's why it says that whatever has happened in the past, leaving that behind, I want to run forward. नहीं तो क्या होएगा, आप इंजीनियर बनना चाहते हो लेकिन बीच में आप एक डॉक्टर का पढ़ाई का किताब लाके पढ़ रहे हो, जैसे कि पिछले जो बीत गया सारा चीज आपका लक्ष्य के बीच में रख रहे हो। And it will be as if you are in the engineering course, but you have brought medical course books and have started reading it. तो मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर में आपका प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि हमारी ओर, जैसा कि पौलुस की एक लक्ष्य था कि मैं दिन प्रतिदिन उस लक्ष्य की ओर दौड़ना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह को और यीशु मसीह के जैसा बनने तक मेरा दौड़ चालू रहेगा। And brothers and sisters, even I want to encourage you, as apostles Paul says, that every day I want to keep running towards that goal and pressing on till I become like Jesus. आपको ये मंजिल रखना है कि मुझे एक दिन यीशु मसीह का जैसा बनना है, इसीलिए प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, हमें हर एक तकलीफ से हमें मदद करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगी। And this is the goal that God has given us, that we have to become like Christ. And for this, God has also given us the Holy Spirit to help us. और एक जगह पे पौलुस कहता है कि जो फंडामेंटल थिंग्स ABCD, मसीह जीवन में ABCD, पानी का बपतिस्मा, विश्वास करना, पश्चाताप करना, ये सब छोटी बच्चे जैसा दूध पीते हैं उस बच्चे किस तरह है ये। Another place, Apostle Paul says that the fundamental things of baptism, water baptism, and repentance and salvation, these are the fundamental things. So प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहन करता है कि हमें आगे बढ़ना है, सिर्फ वही ABCD सीख के नहीं रहना है, हमको और आगे बढ़ना है, जैसे कि यीशु मसीह इस धरती पर जीवन जिया था, वो पवित्र जीवन जिया था। And God's word encourages us that we have to go beyond this ABC and move forward in our lives, in our spiritual lives. कई लोग कहते हैं कि पवित्र जीवन जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु का वचन में प्रोत्साहन करते, पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है हमको, हम यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए। A lot of people say that it is difficult to live such a life which God has called, but this is the reason why God has given us the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा हमें हर दिन अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा हमें हर वक्त सहायता करेगा, जब आपकी आंखों के सामने ये लक्ष्य रहेगा कि मैं यीशु के जैसा बनना चाहता हूँ। So the Holy Spirit will guide you and lead you every day if this is your goal to become like Jesus every day. थैंक यू ब्रदर किरण, ये जो शीर्षक हमारे सामने लाने के लिए। Thank you, Brother Kiran, for bringing this topic in our midst. Yes, thank God for the very encouraging word that we heard. जो हमने बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला वचन सुना, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। So we know from the word of God that the goal of our life, हम जो है प्रभु के वचन से हमारा जो लक्ष्य जो होना चाहिए उसके बारे में हमें पता है। it's written in 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. जो दूसरा थिस्सलुनीकियों का पुस्तक और
दूसरा थिस्सलुनीयन का दूसरा अध्याय और उसका 14 वचन। And it was for this he called you through our gospel, that you may gain the glory of our Lord Jesus Christ. जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करें। So here we see that very clearly that the glory of Jesus Christ is the life of Jesus. तो हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा जो है उनका जीवन ही है। So after coming to know Jesus Christ in our lives personally, then when we walk with Him, then we begin to have a desire to become like Him. तो जैसे हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं और उन्हें जानते हैं, तो हमारे में ये इच्छा बढ़ती जाती है कि हम उनके समान बने। As we know Him and as we love Him, this is the natural thing that comes to us, that we want to become like Him. और जैसे हम प्रभु को जानते हैं और उससे प्रेम करते हैं, तो हमें ये जो भावना है वो बढ़ती जाती है कि हम उनके समान बन जाएं। And the scriptures exhort us to go in this direction. और जो वचन है वो ये हमें ऐसा प्रोत्साहन देता है कि हम इसी और बढ़े। And as we heard, the Holy Spirit is given to us so that we can become more like Christ. और जैसे हमने सुना कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि हम प्रभु यीशु के समान बने। But as we are walking in this way, we find so many failures in our life. तो लेकिन हम ये भी देखते हैं साथ साथ में कि जैसे हम प्रभु में चलते हैं, तो कई बार हमारे जीवन में ऐसे हार जाते हैं हम, और हमें हार का सामना करना पड़ता है। We realize that in many ways we are un-Christ-like. और हम ये भी जान जाते हैं कि हम कई जो हमारे जीवन के क्षेत्रों में जो है हम यीशु मसीह के समान नहीं हैं। In the way we speak to people, we find so much un-Christ-likeness. जैसे हम लोगों के साथ बात करते हैं, उसमें भी हम यीशु मसीह से हम एकदम अलग हैं, हम ये जान जाते We हैं। can start with our speaking to our wife or our children and our family members. हम अपने ही परिवार में हम इसका शुरू कर के देख सकते हैं, और जो हमारे साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं। Then when we think about our thoughts, how we think about people, how we think about things, it is so un-Christ-like. और फिर हम अपने खुद के विचार को परख कर देख सकते हैं कि हम दूसरों के बारे में कैसे सोचते हैं, और ये एकदम प्रभु की सोच से एकदम अलग है। Then in our attitude and our dealing with people, we find there are so many un-Christ-likeness. और हमारी जो दूसरों के प्रति जो हमारे दिल में उनके प्रति जो सोच है, वो भी उसमें भी हम बहुत ही फर्क देखते हैं यीशु मसीह की सोच से। At that time, we feel very much sad about it in our life. We feel very sorrowful. और जब हम इसके बारे में सोचते हैं, तो हमें अपने मन में इसके बारे में बहुत दुख होता है। And that's a very good quality to feel sorrowful. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें इस बारे में दुख हो। It says in Matthew chapter 5 verse 4. मत्ती का 5वां अध्याय और उसका 4था वचन में ऐसे लिखा है। Jesus said, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। So when we find un-Christ-like in us, if we just neglect it, or we say it's okay, it happens because we are human beings, then there is no mourning within us. तो अगर हम अपनी गलती को देखते हैं, लेकिन हम उसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया नहीं लेते, हम कहते हैं कि हम तो इंसान हैं, इसीलिए हमसे ऐसे हो जाता है, तो हमारे दिल में इसके प्रति कोई शोक नहीं है, तो उसके कारण हमें बदलाव भी नहीं आएगा। So the work of sanctification or the work of becoming like Christ, the Holy Spirit is not able to achieve in us. तो इसके कारण जो है, जो हमारा पवित्रीकरण होना चाहिए, वो प्रभु हमारे
तो दिलों में वो कार्य पूरा नहीं होता। But blessed are those who mourn, for they shall be comforted. God is the one who comforts. How the comfort comes? When they become Christ-like. और धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। और वो शांति जो है हम कैसे पाएंगे? जब हम यीशु मसीह के समान बन जाएं। So that's the comfort that God gives us, not any other comfort. That our character is changed to become Christ-like in that particular area. We are comforted. तो अगर हम शांति पाते हैं तो हम उसको यीशु मसीह के समान बनकर ही पा सकते हैं। इसका और कोई रास्ता नहीं। So one more verse in Ezekiel chapter 9 verse 4 I was reminded of. Ezekiel chapter 9 verse 4. यहेजकेल का पुस्तक। And notice this thing, this word, it says, and the Lord said to him, go through the midst of the city, even through the midst of Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the men who sigh and groan over all the abominations which are committed in its midst. और यहेजकेल का 9वां अध्याय और उसका 4था वचन। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। God was telling a man assigned by God to put a mark on the foreheads of the people, of the men who sigh and groan about the abominations being committed there. तो यहाँ हम देखते हैं कि यहोवा लोगों से ऐसे कहते हैं कि जो भी घृणित काम उस शहर में हो रहा था उसको देखकर जो सांसें भरते हैं और दुख के मारे वो चिल्लाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर एक चिन्ह लगाया जाए। See, God notices the people. Not many people would be groaning and sighing for the abominations, but God is noticing and telling, put a mark on these people who are groaning and sighing for when they see abominations happening. तो ऐसे बहुत सारे लोग नहीं होते जो शोक मनाते हैं और जो दुखी होते हैं जब ऐसी बातों को देखते हैं, लेकिन जो परमेश्वर है वो ऐसे लोगों पर ध्यान देता है जो ऐसे जो घृणित काम होते हैं उसके ऊपर उन्हें दुख होता है। Similarly, when in our own lives, when we see the failures and the unchristlike in us, when there is a sigh and a groan in our life, the Lord notices it. इसी प्रकार जब हमारे भी जीवन में हम जिस प्रकार हम यीशु मसीह के समान नहीं है और जो हमारे जीवन में हम हार गए हैं और गिर गए हैं पाप में, इसको देखकर जब हमारे अंदर दुख होता है तो परमेश्वर भी हम पर इस बात पर हमें ध्यान देता है। And He will bring us to that place where we desire that Christ-likeness in our life. और प्रभु हमारे सहायता करेगा कि हम उस लक्ष्य तक पहुंच सके जो हमारी मन में जो इच्छा है कि हम यीशु मसीह के समान बन जाएं, उस लक्ष्य तक हमें लेकर वो चले। Our goal is to be like Jesus as it started. और हम हमारे जो उद्देश्य है उस निशाने की ओर दौड़ना, और हमारा जो उद्देश्य है जैसा कि हमने आज उसके बारे में सुना, मसीह So being like के Jesus, समान बनना। being like Jesus, it means the futuristic of Jesus, his life. और यीशु मसीह के समान बनना कि यीशु मसीह का जो जीवन भविष्य का था वह हम जीना। And our life was different than what Jesus' life is or was. और हमारा जो जीवन है और यीशु मसीह का जो जीवन है उसमें बहुत ही बड़ा अंतर है। That's why it says, I want to read from FNC chapter 4 verse 24. और मैं इफिसियों अध्याय 4 और उसका 24वां वचन पढ़ना चाहता हूँ। I like the word to speak for himself.
Brother, please. इफिसियों अध्याय 4 वचन 24, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। Put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. And this is what God is saying to us. This और is यही our बात- goal. Yeah, sorry. कंटिन्यू ब्रदर। This should be a goal that we need to get rid of our old, what we were before, and to put on new that was in Christ as Christ, putting ourselves is the likeness of God in true righteousness and holiness. और यही हमारा उद्देश्य है कि हमारा पुराना जो मनुष्यत्व है उसको उतार कर हमें नया मनुष्यत्व को पहन लेना है जो परमेश्वर के सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सृजा गया है। That's why it gives you a reason why we should be like this in same chapter verse 27. क्योंकि यहीं पर यह वचन कहता है कि क्यों हमें ऐसा करना है, और उसी अध्याय के 27वें वचन में हम पढ़ते हैं, न शैतान को अवसर दो। Give no opportunities to the devil, because he is a roaring tiger and lion, and he only comes to steal, to destroy, and to kill. और यही कारण है कि हमें हमारे शत्रु को शैतान को अवसर नहीं देना है, क्योंकि वह गरजने वाले सिंह के समान आता है कि वह चोरी करे, नाश करे और घात कर दे। And to have towards and pressing towards the goal in the likeness and holiness of God, what we must do is from verse 29 till 32. Brother, please. और यदि हम चाहते हैं कि शैतान का दाव हम पे ना चला और हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में उसके स्वरूप में बनना चाहते हैं, तो हम वचन 29 से लेकर 32 तक हम पढ़ते हैं कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की करवाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह, निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। Brothers, church, I want to say, if we want to press towards the goal of Christ, we need to remember the chapter of Ephesians, chapter 4, verse 20, from 29 to 32. And that is going to help us to press towards the goal as Christ. और भाई और बहनों, कलीसिया मैं आप सभी से आज कहना चाहता हूँ कि हमने जो इफिसियों के अध्याय 4 का वचन 29 से लेकर 32 तक पढ़ा है, यदि हम मसीह में बढ़ना चाहते हैं, मसीह के समान बनना चाहते हैं और उस सिद्धता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इन सारी बातों को करें जो हमारी अगुवाई करेगा मसीह के समान बनने के लिए। That's why it gives us a reminder in Colossians chapter 3 from verse 1 to 3. Brother, please. और इसलिए हमें फिर से वचन दोहराते हुए इस बात पर जोर देकर कहता है, हम पढ़ते कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 1 से 3, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। I would say underline it, highlight it, the verse 3, for it says, for you have died and your life is hidden with Christ in God. Whoever believes it, who understands what this means, then there's a dramatic change there will be in his life. First thing, we need to understand what the verse is telling and talking to us. Amen. God bless you all. अब भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुलुस्सियों के अध्याय 3 का वचन 3 जो है, आप उसे अच्छी तरह से रेखांकित कर लें और स्मरण करें कि जो कहता है कि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। तो भाई और बहनों, यदि आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं, उसकी समानता में बनना चाहते हैं, तो इस वचन का जो अर्थ है हमारे जीवन में किस प्रकार से लागू होता है, उसकी गहराई को हमें जानना है, और प्रभु आपको इसके लिए सहायता करे। धन्यवाद करता हूँ जो कुछ भी सुना। I thank God for what we heard.
और हमने ये सुना कि परमेश्वर के समान हमको बढ़ते जाना है And this is what we have heard, that we have to keep running towards God. और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जब हमको बुलाया, जैसे रोमियो 8:29 में लिखा है कि वो चाहता है कि पहले से उन्होंने परमेश्वर ने प्लान किया है कि वो यीशु मसीह के समान हम सब बदले. So, as it says in Romans 8:29, that God has predestined us. Sorry, brother, कुछ बोल रहे थे आप? विजय थोड़ा loudly speak. अच्छा, हाँ मैं बोल रहा था कि रोमन्स 8:29 में लिखा है कि परमेश्वर का ये योजना है कि हम यीशु मसीह के समान बन जाए. So we read in Romans 8:29 that it is God's plan for us that we become like Christ. और जब यीशु मसीह बोलते हैं कि फॉलो मी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी कभी सोचते हैं हम जिस तरह यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दिया और सेवा किया, मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर ने बुलाया, बट वो इस तरह बोल रहे कि यीशु मसीह जिस तरह मैं जिया उस तरह तुम जियो. So when Jesus says follow me, we think that in following Jesus it means like doing the miracles which Jesus did, but it is also living as Jesus lived. मिनिस्ट्री के लिए नहीं या सेवा के लिए नहीं, बट जीवन के लिए हमको बुलाया. It is not about ministry or service, it is about life, it is about living a life. और हमने जैसे सुना कि यीशु मसीह के समान बनते जाते हैं, तो काफी सारा चीज हमने सुना, बट मैं एक चीज मेरे लिए वो लास्ट वीक में जो मुझे प्रोत्साहन दिया परमेश्वर का आत्मा ने, वो मैं बताना चाहता हूँ. And we have heard about as we heard about becoming like Jesus Christ. So there is something I want to share with me which I learned last week. और मैं फिलिपियन चैप्टर 2 पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. And this is from Philippians chapter 2, verse 5. Have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus. इसलिए परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने का अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास के स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता हो गया. Who, although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bond servant and being made in the likeness of men. जब मैंने ये पढ़ा ये वचन तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला और मैं जस्ट उसके बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर रहने के बाद भी यहाँ पर हमारे बीच में आया और लोगों ने इसको कितना सताया, कितना परेशान किया, लोगों ने गाली दिया, बट वो उसका रिप्लाई में गाली नहीं दिया. वो चाहे तो मैं सोच रहा था उसके पास वो अधिकार था आगे लेके he emptied himself, मतलब अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को खाली किया. And I was very encouraged to read this verse that Jesus, being God, he emptied himself, and although he suffered so much on this earth, he suffered insults and so many things people said about him, but he could have done, with the powers he had, he could have done anything, but he became zero. He emptied himself, as we read in that verse. मैं जब ये पढ़ रहा था कि यीशु मसीह अपने आप को खाली किया, शून्य किया, तो मैं देख रहा था कि यीशु मसीह चाहे तो जिसको यीशु मसीह को गाली दिया वो चाहे तो एक दिन में उसको नाश कर सकता था या उसको कुछ कर सकता था, बट लेकिन यीशु मसीह इतना दीन नम्रता में देखता हूँ कि परमेश्वर, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ऐसा हो रहा था कि प्रभु मैं ये नहीं कर सकता हूँ. So when people were insulting Jesus, he could have done anything. He could have destroyed those people. But he did not do that. And when I was reading this, I realized that, Lord, I cannot do this. I cannot empty myself like you. जब मैं ये सोच रहा था कि प्रभु मेरे लिए तो संभव है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ. And I was thinking that, Lord, this is impossible for me to do. और मैं बताना चाहता हूँ गुड न्यूज कि जब भी मैंने इस तरह सोच रहा था मैं और असंभव फील कर रहा था,
तो परमेश्वर का आत्मा, मैं आई थिंक कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था कि विजय, मैं तेरे साथ, मैं तुझे हेल्प करूंगा करने के लिए. And just as when I was thinking all of these things, I believe it was the Holy Spirit which said to me that Vijay, I'm going to help you to do it. और इतना मुझे होप मिला उस टाइम पे. प्रभु धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद. मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने आप से मैं काबिल नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ, बट मैं देखता हूँ कि परमेश्वर हमको सहायता करना चाहता है. परमेश्वर का आत्मा जो हमको, बाइबल हमको एनकरेज करता है, वो हमारा सहायक है. जब वो हमको सहायक मदद देगा तो हम डेफिनेटली कर पाएगा. And I was thanking God for this, and I know this, that when the Holy Spirit is helping us, then we can do these things. कोई भी एरिया में हमको लग रहा है कि प्रभु मैं नहीं कर सकता हूँ, तो लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझे, हम सभी को हेल्प करेगा. So we may all feel that we cannot do it on our own, but I want to tell you that the Holy Spirit will enable us to do it. और आगे इस तरह वचन कहते हैं कि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डालता है. कौन सा वर्स है ब्रदर ये? ये फिलिपियंस चैप्टर 2:13. Philippians chapter 2 verse 13, it says over there, for it is God who is at work in you both to will and to work for his good pleasure. लिखा है कि परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा है. मेरे को इतना आगे में जब पढ़ रहा था, मुझे प्रोत्साहन मिला कि हम मेन चीज में देख रहा हूँ कि प्रभु मुझे चाहता है कि दीन हमको नम्र बनना चाहिए. यीशु मसीह ने बोला कि कम एंड लर्न फ्रॉम मी, मुझसे आके सीखो कि मैं मन में किस तरह दीन और नम्र हूँ. And over here, this verse really encouraged me, which says that God is at work in you. So it is God who is at work in ourselves, and as Jesus says that come and learn from me. So we have to learn from him and humble ourselves. Thank you, sister. Thank you. I was reminded that when we become a Christian and when we begin our walk with the Lord, and we hear people telling good things about us, they may say that you are so quiet, you are so calm, and you are so peaceful person, and if we just believe what people tell about us and go on like that, we can be deceived. Brother Vipul? Yes brother, I am here. Yeah. और जैसे कि आज हम वचन सुन रहे थे, तो जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु के पास आते हैं और प्रभु के साथ चलने लगते हैं, और बाहरी तौर पर हमारे जीवन में बदलाव को देखकर जो हमारे बाहर के जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो हमारे जीवनों को देखते हैं और वो हमसे हमारे जीवन के बारे में कहने लगते हैं कि तुम बहुत शांत हो और तुम्हारा जो स्वभाव है थोड़ा अलग है, और जो लोग हमारे बारे में प्रशंसा करते हैं, उन्हीं बातों को हम हमारे जीवन में हकीकत मान लेते हैं. And then we can be deceived. और इसी के द्वारा हम भरमाए भी जा सकते हैं. Like I was thinking that when I have gone through difficulties in my life, and I've faced people speaking bad about me, and then I have seen that I may keep quiet, but inside me there is so much of anger and bitterness towards those people. और मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने भी अपने जीवन में ऐसे एक समय का, ऐसी कठिनाई का सामना किया है जहां पर लोगों ने मेरे विषय में बहुत ही बुरी बुरी बातें कही, और बाहर से तो मैं स्वभाव में पूरे रीति से शांत थी, परंतु मेरे भीतर, मेरे हृदय में उन सभी के प्रति मेरे मन में कड़वाहट की भावना थी. So I thank God that God doesn't leave us there. As we read His Word, He will show us that this attitude which you have is not right. और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ऐसा नहीं कि वह हमें वहीं पर अकेले ऐसे छोड़ देंगे, परंतु परमेश्वर हमारी सहायता के लिए वहां पर रहते हैं. Yeah, and He shows us through His Word that what this attitude which you have is not right. अब परमेश्वर उनके वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि जो हमने व्यवहार किया है, जो हमारा स्वभाव था, वहां पर वो हमारा स्वभाव सही नहीं था. So like how brother was sharing that we should have a purity is something which God desires from us, and He has given us His Holy Spirit to make us holy.
और जैसा कि भाई बता रहे थे कि परमेश्वर हमसे हमारे पवित्रता को, शुद्धता को चाहते हैं कि हम शुद्ध बने, और परमेश्वर ने उनका पवित्र आत्मा हमें दिया है जो हमें शुद्ध बनाएगा, पवित्र बनाएगा। So I was just thinking of this verse from 1 Timothy chapter 1 and verse 5, which says this, but the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. और इसी के संदर्भ में मुझे एक वचन स्मरण आता है जो हम पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और 5वां वचन। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। Yeah, so I was just thinking that if I'm not purifying myself, there are so many things like we see in Mark chapter 7 and verse 21 onwards. It says, what are the things that defile us? It says, Mark 7 and verse 21 onwards, for from within, out of the heart of men proceed the evil thoughts, fornication, thefts, murders, adulteries, deeds of coveting and wickedness, as well as deceit, sensuality, envy, slander, pride, and foolishness. और मैं इस वचन पर ध्यान कर रही थी कि यदि मैं अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं करती हूँ तो मैं मेरे साथ क्या होगा। हम पढ़ते हैं मरकुस के अध्याय 7 और उसका 21 से आगे की ओर हम वचन में देखते हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। So all these things Jesus was saying is dwelling in my heart. So I was just thinking, as a believer, sometimes we may not be committing big sins, like robbing or like fornication or adultery, but these other things which come towards the end of the verse, which says deceit, sensuality, envy, slander, pride, and foolishness. These are things which can be there in our heart and nobody sees it. और जब मैंने यह वचन पढ़ा था मैं सोच रही थी कि ये सारी बातें हमारे हृदय में होती है। जैसे कि हम, हो सकता है हमारे मसीह जीवन में हम कुछ बड़ा पाप नहीं करते हो, जैसे कि व्यभिचार करना या चोरी करना या परस्त्री गमन, लेकिन हम उस वचन के दूसरे भाग में देखते हैं कुछ और बातें वहां पर पाप की लिखी हुई है कि छल की बातें, लुचपन, निंदा, कुदृष्टि, अभिमान, मूर्खता, और यह हमारे जीवनों में होता है। This is what I was just thinking, that I need to, cleanse myself from. These are things, I thank God that, God shows me that these things are still lurking in my heart. And the word of God is like a light, it shines and shows us what are hiding in, maybe in some corner of our heart through situations which we have to face. He throws his light in those corners, dark corners of our heart where these things are hiding, and he shows us that we need to cleanse ourselves from this. और ये सारी बातें हम मेरे हृदय में होती है, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वह उनके वचन जो एक प्रकाश, एक उजाले के समान मेरे हृदय पर डालते हैं। मेरे हृदय की गहराई में किसी एक कोने में, कोने में जो ये सारी बातें छुपी होती है, परमेश्वर परिस्थितियों के द्वारा वहां पर अपना प्रकाश डालते हैं कि ये सारी बातें मेरे ध्यान में आने लगे कि मैं अपने आप को उनसे शुद्ध करने पाऊं। Yeah, and I thank God that God is not, like we were reminded today, that we are not called to do some big service or do something in the form of service, but we have been called to be changed into His likeness, and that is something which we can allow the Lord to do in each of us. और जैसे कि आज हमने वचन में सुना कि हम इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य को करें या प्रभु की सेवा में हम उसकी सेवा का कार्य करने पाए, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवनों को वो भीतर से बदल कर यीशु मसीह की समानता में बना सके। Yeah, so I thank God for what I heard. तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का जो कुछ आज हमने वचन में सुना है। तो मुझे ऐसा लग रहा था, सच में हम हमारा स्वभाव को शुद्ध करने जाता है तो कई बार हम दुख होता है। So then I was just thinking that if we want to change our character, then it is true that in many areas of our life we will feel sorry
and mourn for the things that we have done. क्योंकि मैंने देखा है एक ऐसा मतलब हम एक दीवार को जब पेंट करते हैं तो वहां पे उन्होंने एक एकदम रफ वाला पेपर को लेके उसको पॉलिशिंग करते हैं एकदम शाइन के लिए. So, for example, like if we are going to paint a wall, then we use a sandpaper to rub out all the rough parts of that wall. तो वो सब करने के बाद उसके ऊपर और पेंट डाल के और उसको सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाते हैं. And then only after that will we apply the paint and make that space smooth and soft. तो उसके बाद लोगों को लगता है ये दीवार कितना सॉफ्ट एंड स्मूथ और कितना अच्छा पेंटिंग मतलब कितना अच्छा लगता है वो दीवार. Then when people see, they will say that, oh, then now this wall is looking so smooth and so clean and shiny. तो हमारे चारों ओर जब हमको लोग टोकते हैं, अगर हम विश्वासी हम प्रभु की बच्चे हैं, अगर ऐसा टोकने वाला हमें डांटने वाला है तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग है. वो हमारा स्वभाव को हम खुद नहीं बदल सकते, यीशु वो कार्य करता है, ऐसा लोगों का हमारा जीवन में अलाउ करता है ताकि हमारा स्वभाव स्मूथ और शाइन बन जाए. So for the Lord to work in our lives, we cannot change ourselves. So the Lord sends people like this across our way. People are sent by the Lord Himself, so that this change can take place in our lives. लोग हमारा जीवन में कई तरीके से बात कर सकते हैं, वैसा है वैसा है, तो वो सारी बात अगर हम विश्वासी है उन्हीं के जीवन में होता है, ताकि यीशु चाहता है आप मेरे जैसा नम्र और दीन बने. So when the Lord allows such people into our lives, it is the Lord Himself who's allowing this, because He wants us to become like Him, meek and humble. अगर हम लोग खुद करना चाहेंगे तो हम खुद दिखेंगे. But if we are trying to do this with our own effort, people will be able to see it. अगर वो वही काम यीशु कर रहे हैं तो वो शाइनिंग बात दिखेगा. But at the same time, if it is the Lord who is doing this work inside of us, then it will just show forth from our lives. क्योंकि उसी समय हमारा आत्मा हमको नम्र होना, हमारा शरीर दीन होना, वो यीशु हमको सिखाता है. Because it's then that the Holy Spirit, the Lord Jesus, can show us how to be humble and to be meek. तब जाके मुझे ऐसा, क्योंकि मेरा जीवन में कई बात मैंने ऐसा सीखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कई ऐसा लोगों को मेरा जीवन में लाया है, तकलीफ दे, दुख दे और मुझे नीचे गिराए और नीचे दिखाए. तो तब मेरे को स्टार्टिंग में बहुत कुड़कुड़ था, बट मैं यीशु के करीब होते गई तो मुझे वो सब लोगों से मुझे सच में प्यार आने लगा. So there are people like that in my life who try to put me down or who speak badly about me. But when I allowed the Lord to work in my life, I myself was surprised that in my heart there was love towards these people. और हम उनको प्यार करने लगते हैं, उनको क्षमा करने लगते हैं, उनको हम प्रभु का प्रेम दिखाने के लिए सच में हम तैयार हो जाते हैं. ये है प्रभु का शाइनिंग करने का तरीका. मेरा ख्याल से मेरा जीवन में ऐसा हुआ है. So this is what has happened in my life, that the Lord has done this work in my life, and I'm able to show forth God's character through my life. जैसा कि मैथ्यू 5 और पहली अध्याय में आत्मा में हम दीन हो जाते हैं तो परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर लोगों को दिख सकता है. क्योंकि हम दीन नहीं करेंगे तो हम नहीं, क्योंकि वो उन परिस्थितियों को हम आनंद से नहीं लेंगे और उन परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर को हम हमारा जीवन में कार्य करने नहीं देंगे. हम कुड़कुड़ाएंगे या रोएंगे या हम कलीसिया से दूर हो जाएंगे, नहीं तो हम लोग हमारा फैमिली से दूर हो जाएंगे, नहीं तो हम कुछ और भी करते रहेंगे तो हम संसार के करीब हो जाएंगे, नहीं तो हम प्रभु को वो कार्य करने देंगे तो प्रभु की महिमा होएगा और हमारा आत्मा में हम दीन होकर हम प्रभु के राज्य को हम फैला सकते.
ये मेरा if just like in Matthew chapter 5 and verse 3 it says, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. We will be able to show to other people that what the kingdom of heaven is like. And when we are faced with difficulties and problems in our own life, it will not take us away from the church or from our family and make us go far away from them, but it will allow we will allow the Lord to do a work in us. Thank you.